Let us discuss the problem number 4.99 of Urdu. This problem is based on basically LC oscillations and it is useful for JEE Advance. इसमें दिया क्या है कि there are two capacitors each of capacitance C, right? And this left capacitor is charged up to voltage V0. Let us say upper plate is charged up to voltage V0 with respect to the lower plate. And this capacitor is uncharged, switch is open. There is no current in the inductor. There is no resistance in the circuit, right? Now the switch is closed at say time t equal to 0. After that, we have to find potential across this capacitor and potential across this capacitor as a function of time. This is the question asked here in the book, but there may be 2-3 more good questions on it. First, let us find this answer, then we will discuss those questions also. Those possible questions which can be asked in IIT. So, let us say कि at time t, let us say t time after closing the switch, potential across the left capacitor and right capacitor are V1 and V2 with the polarity shown in this figure. Initially, I assumed that the upper plate was positively charged, and this was uncharged. After switch is closed, यानी switch close करने के बाद we can expect कि positive charge यहाँ से कुछ निकल के इस तरफ आएगा, जिससे कि जो पोटेंशियल यहाँ लगा है वही पोटेंशियल आगे एलिमेंट्स के क्रॉस लग जाए, जिससे केवीएल सेटिस्फाई हो जाए, राइट? तो इस वजह से चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हियर. यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा. हाउ मच? एल डी आई बाई डी टी. एल डी आई बाई डी टी में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आई विल सजेस्ट कि जिस तरह से रेजिस्टेंस में करंट के लॉन्ग आई आर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है. ड्रॉप मीन्स यहाँ अगर ज़्यादा है इधर कम है तो कितना डिफरेंस है आई आर. ये रिजल्ट में याद रहना चाहिए कि करंट के लॉन्ग एज वी मूव अलॉन्ग द करंट आई आर अमाउंट से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है. वी कॉल इट, या इस बात को कहते कैसे हैं कि पोटेंशियल इज there is a drop in potential along the current by amount IR. In the similar way, we can say inductor में along the current there is a drop of potential of amount L di by dt. अगर ये रिजल्ट याद है तो हम इसमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए. अगर डी आई बाई डी टी नेगेटिव है तो अपने आप इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी. But we should simply remember if we move along the current in an inductor, then along the current there will be loss of potential by amount L di by dt. Right? So we can say that here across the inductor there will be drop of potential, and plus minus दिखाने का यही मीनिंग है कि लेफ्ट एंड का पोटेंशियल यहाँ लेफ्ट एंड का पोटेंशियल राइट एंड से एल डी आई बाई डी टी अमाउंट से ज़्यादा है, या वाइस वर्सा राइट एंड का पोटेंशियल लेफ्ट हैंड से एल डी आई बाई डी टी कम है. और यहाँ पोलैरिटी प्लस माइनस मीन्स यहाँ से यहाँ ने पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2, यहाँ माइनस प्लस पोटेंशियल, मतलब ऐसे चलने से पोटेंशियल V1 गेन होगा, राइट? तो फर्स्ट लेट अस अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन. व्हाट इज चार्ज कंजर्वेशन? Whatever charges are on this plate, when they start moving, they will reach to the upper plate of second capacitor, and they can't go into air. So we can say whatever is charged here, that will be now equal to sum of these two charges, right? These two charges will be equal to charge stored on the upper plate.
So here now charge is CV1, here charge is CV2, and initially here charge was CV0. So CV1 plus CV2 should be CV0. That means V1 plus V2 equal to V0. This is a simple equation. See equation number 1. Now let us apply KVL. And let me explain what I am going to do. We have to find potential across V1 and V2. And since we have now obtained the relation between V1 and V2, if we can find V1 as a function of time or V2 as a function of time, then we will get obviously the other one as a function of time using this equation. So we should try to form a differential equation in terms of either V2 or V1 only, right? So let us try, and that equation will come with the help of KVL. KVL अप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, इक्वेशन तो ये आएगी. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि मैंने कैसे लिखा है ये. Here is again, if we move say in clockwise sense, you can move for KVL in any sense. KVL लगाने के 2-3 अप्रोच हैं, सबका मीनिंग एक ही होता है. तो अगर if we move around a loop, then total algebraic sum of potential should be 0. तो उसमें एक कन्वेंशन हमें बना लेना चाहिए कि हम गेन को प्लस कहेंगे या ड्रॉप को. तो सपोज आई से गेन एज ए प्लस, तो वी मूव फ्रॉम हियर टू हियर, वी विल गेट V1 gain, we will write as a V1, and then we are moving like this. So there is a drop of potential LdI by dt, so we will put a minus sign before LdI by dt, and then again there is a drop of V2, so again minus V2, then cycle is closed. We started from here and went here and came back here, right? So we should get 0. So V1 minus V2 will be LdI by dt. And what is I? I can be related with V1 or V2. Let us understand what is I. I can be written as rate of increase of this charge. Why I am saying increase? Because current is directed like this. Sense of current is the basically flow of positive charge. We can assume that here charges will grow with time at rate I. इस चार्ज के बढ़ने का रेट ही आई है, तो आई कैन से आई इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ CV2 ही यहाँ चार्ज होगा. और वैसे वर्षा वी कैन आल्सो से कि हियर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ दिस चार्ज, जिस रेट से यहाँ से चार्ज निकलेगा वो भी आई है. तो वी कैन आल्सो से कि आई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ CV1. इनफैक्ट और दूसरा मैंने क्या बताया, आई इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ CV2. And in fact, since V1 plus V2 equal to V0, obviously इनका जो डेरिवेटिव होगा वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा. तो यहाँ से वेरीफाइड है. तो हम I को डी बाई डी टी ऑफ CV2 कहें या डी बाई डी टी ऑफ माइनस CV1, राइट. तो आई विल यूज दिस वन and I will frame the differential equation in terms of V2. From here equation number 2 and equation 1, 2 and 1, we can get expression in terms of V2 only. If we subtract from equation 1 to equation 2, we will get this equation. And then in place of I, we will use this relation. So di by dt will be equal to second derivative of V2 into C, right? To using equation 3, 1 and 2, finally we will end up on this equation. First here and then place di by dt from here, this one or this one, we will reach to this equation. And this is the equation in V2 only. Now we have only one variable V2 and t. And this is the equation which can be solved. इसको मैं इस तरह से रीअरेंज करता हूँ यहाँ पे, राइट. और
ये V2 में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ऐसा कुछ कुछ SHM में आता है, इसको और प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं जैसे देख एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन हमें समझ में आ जाए। इसको कह दिया जाए ओमेगा स्क्वायर, तो वी कैन गेट इक्वेशन दिस इन दिस फॉर्म, राइट। 2/LC इज ओमेगा स्क्वायर, 1/LC इज ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये इस तरह से लिख उठेंगे। एंड दिस इज ए मोर इंटरेस्टिंग अप्रोच। इसमें क्या किया हमने कि अब V2 माइनस V0/2 को एक नया वेरिएबल V कह दिया। उससे क्या फ़ायदा होगा कि इसका जो V2 का सेकेंड डेरिवेटिव है और V का सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा विच इज कांस्टेंट। तो ये पूरी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। बेसिकली मैं इसको V एक सिंगल वेरिएबल लिखना चाह रहा था, तो उससे इक्वेशन ये इस फॉर्म में आ जाएगी। एंड दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर फॉर्म। इसको देख के SHM हमें की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की इक्वेशन का सोल्यूशन सिंपल हार्मोनिक फॉर्म में ऐसे माना जाता है। हार्मोनिक फंक्शन, राइट, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाती है ओमेगा, और यहाँ एक एम्पलीट्यूड इमेजिन करते हैं, यहाँ एक इनिशियल फेज इमेजिन करते हैं। तो वी कैन बी रिटर्न फ्रॉम हियर लाइक दिस, एंड वी इज बेसिकली हाउ मच, V2 माइनस V0/2। उसको ऐसे लिखेंगे तो फाइनली V2 हमें ये आ जाएगा। बट स्टिल वी हैव टू फाइंड A एंड थीटा। सो फाइनली इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। ये 5 नाम इसलिए दे दिया, इससे थोड़ा कन्वीनियंस रहेगी उनको यूज़ करने में। तो अब जो इनिशियल कंडीशन है उसका यूज़ किया जाए। इनिशियल कंडीशन क्या थी, शुरू में केवल V1 था, V2 0 था, तो एट t इक्वल टू 0 V2 वाज 0। ये कंडीशन यहाँ 0 डाल देंगे, t को 0 डाल देंगे, तो a साइन थीटा इक्वल टू माइनस V0/2 आ जाएगा। और फिर एक कंडीशन और है, t इक्वल टू 0 पर i 0 था, बट i क्या था, i वाज C dV2/dt, यानी इस चार्ज की बढ़ने का रेट, यहाँ इसे मैंने एक्सप्लेन किया था। I वाज CV2/dt dV2/dt, इस चार्ज के बढ़ने का रेट, राइट। सो इसका डेरिवेटिव जब कर देंगे तो कॉस में आ जाएगा, और फिर t 0 डाल के i को 0 डाल देंगे, डेरिवेटिव 0 डाल देंगे V2 का। तो इस कंडीशन और इस कंडीशन को यूज़ करके फाइनली a की वैल्यू इसमें और थीटा दोनों निकल आएंगे। a आ जाएगा माइनस V0/2, थीटा जाएगा π/2, राइट। और फिर से इसको सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ, थीटा की वैल्यू और a की वैल्यू, तो V2 की ये वैल्यू आ गई। एंड दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। पंचे के नीरो 2, जहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या है, √2/LC। ओमेगा मैंने यहाँ दिया है, राइट। ओमेगा जाएगा √2/LC। तो ये V2 आ गया, और V1 प्लस V2 हम लोग पहले पा चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस मच, तो V1 ही आ जाएगा। V2 सबसेट कर दें V0 में से, तो दोनों काफ़ी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। बस केवल यहाँ साइन का डिफरेंस 1 माइनस, यहाँ प्लस। यू कैन हैव ए क्रॉस चेक t इक्वल टू 0 पर V1 V0 ही आ जाएगा, केवल ये 2 हो जाएगा 1 + 1, और शुरू में V1 V0 था, राइट। इसमें जो और पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं जो इस हीरो 2 बुक में नहीं पूछा गया है, जो मल्टीपल चॉइस में या मोर देन वन क्वेश्चन का जो फॉर्म आता है कॉम्प्रिहेंशन का या पैसेज का, उस तरह के बना के पूछ सकते हैं। यहाँ पूछा सकता है कि मैक्सिमम करंट क्या होगी ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट पीरियड। तो मैक्सिमम करंट कब क्या होगी, उस समय V1 V2 क्या होंगे, राइट। तो मैक्सिमम करंट पाने के लिए जो फार्मूला आई का आया था, अभी यहाँ दिया था मैंने, C dV2/dt, राइट। तो C इंटू dV2/dt करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर दें, सॉरी यहाँ पे है, इंटू C कर दिया जाए, तो I मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, dV2/dt करेंगे तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, C यहाँ और मल्टीप्लाई होगा,
आई हैव मिस्ड इट। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा, विद माइनस से प्लस हो जाएगा वो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो आई मैक्सिमम ये हो गया। कब होगा? जब ये चीज़, ये एक्सप्रेशन 1 हो, और जब ये 1 होगा तो ऑब्वियसली कॉस की वैल्यू क्या होगी? कॉस की वैल्यू हो जाएगी 0। जब साइन 1 होगा तो कॉस 0 हो जाएगा, और जब कॉस 0 होगा तो v1 v2 इक्वल हो जाएंगे v0/2। यहाँ पे एक c और मल्टीप्लाई हो गया है, मिस्ड हियर c, राइट। बेसिकली आई मैक्सिमम हो जाएगा v0 रूट c बाई एल और बाई √2, राइट। तो आई मैक्सिमम भी आ गया, और उसमें वोल्टेज की वैल्यू आ गई दोनों v0/2 ईच। इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बन सकता है कि विल देयर बी एनी सिचुएशन जब सारी एनर्जी इसकी, मतलब इसका यहाँ पे दो तरह की एनर्जी है, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो विल देयर बी एनी सिचुएशन, कभी ऐसा होगा कि सारी एनर्जी इंडक्टर में आ जाए, यानी कैपेसिटर्स की एनर्जी का सम क्या 0 हो सकता है किसी इंस्टेंट पर? तो लेट अस चेक। कैपेसिटर्स की एनर्जी पाने के लिए v2² इंटू c/2, v1² इंटू c/2, वो दोनों c सेम है, ऐसा करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आता है तो यू विल सी कि वो कभी 0 नहीं होगा। तो उसकी लीस्ट वैल्यू वो कुछ इस फॉर्म में आता है, यू आता है सर्टेन कांस्टेंट प्लस समथिंग इनटू, ये नाउ यू कैन चेक इट, इस तरह का आएगा। और कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो 0 हो सकती है लीस्ट, बट ये टर्म नॉन जीरो आता है। इनफैक्ट यू कैन चेक हियर, आई हैव, ये आता है CV0²/4। तो टोटल एनर्जी इस दोनों कैपेसिटर की कंबाइंड वो इससे कम कभी नहीं होगी, CV0²/4, यानी सारी एनर्जी सर्किट की कैपेसिटर्स में नहीं आएगी, राइट। सारी एनर्जी इंडक्टर में नहीं आएगी, कैपेसिटर में एक मिनिमम वैल्यू हमेशा रहेगी, रिमेनिंग पार्ट इन दोनों में ऑसिलेट करेगा, राइट।